Hello students, in a earlier video lecture we discussed the topic electrostatics, current electricity, magnetic effect of current and magnetism. Now in this video lecture we are going to start the new unit of this 12th class syllabus, electromagnetic induction. In a electromagnetic induction means electromagnetic induction means what is the electromagnetic induction? Induction मतलब just produce होना, तैयार होना. तो it is a when change in a magnetic flux या magnetic field is a takes place, current is induced in the conductor या coil. This known as a electromagnetic induction. Before going to the detail in this topic, we need to know what is the magnetic flux. The magnetic flux, what is the magnetic flux? So in this case, this is the magnetic flux or magnetic flux is denoted by this letter, this known as a phi. Phi is a letter used for the magnetic flux. So magnetic flux means, suppose this is the specimen or is one material is a place in a magnetic field which having a area equal to A, which having a area equal to A, and that is perpendicular to this surface of the area element, it is a vector. So area element, suppose this is a b cos theta perpendicular to the surface and this is the direction of the magnetic field B, or theta is the angle between the direction of the magnetic field and this is the area perpendicular to the surface, so this is area element. So the magnetic flux, the phi equal to this equal to B dot A. A is the vector unit area vector, and flux phi equal to this is the BA cos of a theta. A cos of theta is a perpendicular component to the surface. It is denoted by unit vector n cap. So what is the flux? The flux is a product of dot product of the magnetic field and area of the element. So magnetic flux, number of magnetic field lines. What is the magnetic flux? The number of magnetic field lines, a magnetic line of force passes through this surface. This known as a magnetic flux. So magnetic number of line of force passes through that surface, this known as a magnetic flux. And flux, what is this a unit of the flux? Suppose this theta equal to this is a 0 degree, then this is a B into A. So the flux phi equal to B का क्या होता है? What is the B? This is a force exerted by charge particle F is equal to BQV sin of theta, और ये मैक्सिमम बोलो तो sin थीटा हम क्या करेंगे 1 लेंगे. तो F इक्वल टू क्या आता है? दिस इज द BQV और sin थीटा इज ए 1. सो B इक्वल टू क्या होगा? B इक्वल टू F डिवाइड बाई Q डिवाइड बाई V. ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं अभी? SI यूनिट लिख रहे हैं. SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. Magnetic flux. Magnetic flux, this denoted by phi equal to, magnetic flux means number of magnetic line of force passes through the surface when it is placed in a magnetic field. This known as a magnetic flux. Number of line of force passes through the material
which is a place in a magnetic field, this known as a magnetic flux, and that flux equal to B into A. B का वैल्यू लिखेंगे F डिवाइड बाई QV. यहाँ से मैंने जो यहाँ लिखा है कहाँ से आया, हम जानते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A. देन इसके बाद इंटू ए. तो फ्लक्स फोर्स का ये फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है इसका, तो ये आएगा. और इसका जो यूनिट है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का हम SI यूनिट लिख रहे हैं, उसके बाद डायमेंशन लिखेंगे. तो SI यूनिट फाई इक्वल टू B इंटू A. सो फाई इक्वल टू B क्या है, दिस B इज इन ए टेस्ला एंड एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, और इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर. टेस्ला मीटर स्क्वायर, दिस इज द SI यूनिट ऑफ ए magnetic flux, and this equivalent unit of the Tesla meter square, this Tesla meter square is equal to 1 Weber. Weber is a unit, actual unit Tesla meter square, but to honor the scientist the Weber, the unit of this magnetic flux is given as a Weber, like a just like a Newton फोर्स के लिए यूज़ किया, इसी तरीके से ये यूनिट यूज़ किया. चलो देखते हैं इसका डायमेंशन लिखना है. तो डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी. सो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया, वेबर, और इसको दिखाने में ऐसे ही लिख सकते हैं W सफिक्स B छोटा b, तो ये इक्वल टू टेस्ला मीटर्स के 1 वेबर इक्वल टू टेस्ला मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये इसका यूनिट हो गया. अभी हम इसको डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी. तो फ्लक्स इक्वल ये क्या होता है, फोर्स. फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट में लिख रहा हूँ. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन का क्या होता है, लेंथ इंटू टी स्क्वायर होता है. लेंथ डिवाइड बाई टाइम स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम बोले तो भी वो एक्सेलरेशन है. और डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू दिस इज द क्यू क्या है कि क्यू इज ए चार्ज, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है IT, और ये वेलोसिटी है, और ये एरिया का लेंथ का स्क्वायर. ओके, यम L का क्यूब T⁻⁻², ये ऊपर का टर्म हो गया. I का के लिए लिखे थे एम्पियर यूज़ करते हैं. टाइम के लिए आएगा सेकंड. वेलोसिटी होता है लेंथ डिवाइड बाई सेकंड, और लेंथ डिवाइड बाई टाइम. सेकंड ये टाइम है, IT मतलब टाइम, तो ये भी आएगा क्या, T, कैपिटल T. तो दिस टू गेट कैंसल्ड. सो फ्लक्स फाई इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो m⁻1 L⁻, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 10⁻⁻², और ये (-1). सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स. अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता चला, इसका ये हो गया SI यूनिट, और इसका यूनिट देखेंगे CGS यूनिट. कभी कभी ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल में आता है, तो अभी पता होना चाहिए. CGS यूनिट होता है मैक्सवेल. क्या होता है, मैक्सवेल इक्वल टू, और टेस्ला का SI यूनिट क्या होता है, टेस्ला की जगह आएगा गॉस. टेस्ला की जगह क्या आएगा, गॉस, और ये एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 1 मैक्सवेल इक्वल टू गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द CGS यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स. तो हमने अभी पढ़ा व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द मटेरियल व्हेन इट इज ए प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पास होता है, दिस नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स. और इसका यूनिट के बारे में, डायमेंशन, और इसके बारे में हमने पढ़ा भी. अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
electromagnetic induction denoted by the letter B, electromagnetic induction B, या electromagnetic induction, it is a production of the induced EMF या induced current, production of induced EMF या induced current when change in magnetic flux is a takes place or change in magnetic field is a takes place. So this phenomenon of, ऐसा लिख सकते हैं, phenomenon of production of induced EMF और करंट, बोलो इसको, induced current when change in a magnetic flux, change in magnetic flux या magnetic field, flux ही लिखेंगे, this is more appropriate, change in a magnetic flux is takes place. Phenomenal production of induced EMF current in a conductor, कहाँ होगा? In a conductor. So phenomenon of production of induced EMF in a coil or conductor when it is a place in a changing magnetic flux. जहाँ magnetic flux change होता है उसमें अगर कंडक्टर रखा तो उसमें क्या होता है? करंट तैयार हो जाता है या इंड्यूस हो जाता है. दिस फिनोमिनन नोन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस फिनोमिनन को समझाने के लिए Faraday's there are the 3 types or 3 experiments performed by the Faraday explain किया, तो this known as Faraday's experiment. और up to that, with that experiment, conclusion of this experiment is written in the form of laws. This known as Faraday's 2 laws in a electromagnetic induction. तो experiment क्या है? The first experiment, first देखेंगे experiment 1. When there is a coil, कौन सा coil ये? When there is a coil of a insulated copper wire, यहाँ एक coil है, ये insulated copper wire है जो मोटर वाइंडिंग के लिए यूज़ करता है. वो वायर का एक छोटा सा ये coil बना है. दिस इज द coil एंड दिस coil is connected to the galvanometer. ये जो डिवाइस है दिस नॉन एज ए गैलोनोमीटर, हमने थ्योरी में पढ़ा. तो ये जो छोटा, दिस इज द स्मॉल पोर्टेबल फॉर्म ऑफ द गैलोनोमीटर, छोटा सा. तो गैलोनोमीटर में बीच में 0 है. वी कैन मेजर द करंट इन ए बोथ साइड, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में. नाउ द पॉइंटर इज एट द सेंटर, मीन्स एट द 0. व्हेन करंट फ्लोज इन ए वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इट डिफ्लेक्ट इन ए राइट साइड. व्हेन करंट डायरेक्शन इज रिवर्स इट डिफ्लेक्ट इन ए लेफ्ट साइड. ऐसा ये डिवाइस मैंने यहाँ कनेक्ट किया. अब ये सब पार्ट होल्ड करके कैमरे के सामने नहीं दिखा सकते, इसीलिए ये सब लेबोरेटरी में आने के बाद हम दिखाएंगे. तो अभी अगर ये कॉइल मैंने यहाँ कनेक्ट किया और इसमें ये जो मैग्नेट है विच हैविंग ए 2 पोल्स, और ये मैग्नेट साथ में इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो क्या होगा? इसमें करंट इंड्यूस होगा. मतलब ये जो कॉइल है, मैंने यहाँ पिक्चर भी ड्रॉ किया और यहाँ गैलोनोमीटर कनेक्ट दिखाया. और ये कॉइल को गैलोनोमीटर कनेक्ट किया और ये गैलोनोमीटर और कॉइल यहाँ कनेक्टेड है. और जो मैग्नेट है, व्हेन वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल, यहाँ एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं? n पोल ऑफ दिस मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल, यहाँ कॉइल के तरफ लेके आए. तो गैलोनोमीटर शोज दी डिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें से जो इसका मोशन होता है मैग्नेट को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए पासेस थ्रू दिस कॉइल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through this coil. As a result,
करंट इज इंड्यूस या प्रोड्यूस तैयार होना इंड्यूस इन द कॉइल विच शोज द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। समझ में आया बात? तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हेन दिस मैग्नेट द एन पोल ऑफ दिस मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल, इस तरीके से फास्टली मूव किया तो क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन दिखाता है जब इसमें से करंट फ्लो होगा, और गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट कैन मेजर दी वेरी स्मॉल करंट, छोटा करंट भी वो मेजर करते हैं। तो इसीलिए ये व्हेन मैग्नेट इज अ मूव टुवर्ड द कॉइल, इस तरीके से एन पोल मूव टुवर्ड द कॉइल, जब कॉइल की तरफ अगर एन पोल मूव किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद दिस मैग्नेट इज अ चेंजेस, and in that magnetic field this coil as a conductor placed in that changing magnetic flux, as a result current is a induced and that current shows the deflection of the galvanometer। जब ये कॉइल दूर, अभी मैग्नेट दूर लेके जाएंगे, when magnet is a move away from the coil at that time also galvanometer shows the deflection but in a opposite side, इसका मतलब क्या होता है, जब ये मैग्नेट मूव करेंगे दूर तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे मैग्नेट कॉइल की तरफ लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब चेंज होता है, कम से ज़्यादा हो गया मतलब इंक्रीज हो गया, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में कॉइल रखा है तो करंट प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नेट दूर लेके जा रहा है, just suddenly it move away from it, at that time magnetic field again decreases, maximum to the decreases, so change in magnetic flux is a produced, but in this case magnetic flux is decreased, so EMF which is induced which is in a opposite direction, ulta direction में EMF induce होगा। so this is the first experiment। second experiment देखो, when two coils, इसमें कॉइल एक्सपेरिमेंट, एक कॉइल को क्या किया, यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, एक कॉइल को क्या किया, गैल्वेनोमीटर किया, दिस इज कनेक्टेड द गैल्वेनोमीटर, और सेकंड कॉइल इज कनेक्टेड टू द बैटरी। एंड दिस इज द करंट थ्रू इट कॉइल से, एंड दिस कॉइल इज ए मूव टुवर्ड दी, कॉइल इज ए मूव टुवर्ड दी, ओके, इसको नाम देते हैं कॉइल C1, दिस इज द कॉइल C2। व्हेन कॉइल C2 इज मूव टुवर्ड दी कॉइल C1, अगेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए टेक्स प्लेस एंड EMF इज ए इंड्यूस, गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। जब कॉइल, क्योंकि ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हमने पढ़ा है, याद है तो इसको रिकॉल करो, B इज इक्वल टू μ0 N इंटू I, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए सोलिनॉइड या कॉइल, and this magnetic field when it is a move means change in magnetic flux is takes place, when moment of this magnetic coil is a takes place, change in magnetic flux is a takes place, as a result current is induced in this coil। जब ये करंट इंड्यूस हो गया इस कॉइल में तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देखा, फिर कॉइल दोबारा दूर लेके गए, व्हेन कॉइल इज अ मूव अवे फ्रॉम इट देन आल्सो गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। सो दिस इज ए सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब थर्ड देखो, थर्ड एक्सपेरिमेंट थर्ड, व्हेन ये कॉइल है, मान लो ये स्टेशनरी कॉइल है, यहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया तो वो क्या इंडिकेट करेगा, करंट प्रोड्यूस हुआ क्या नहीं, और यहाँ एक कॉइल इज अ प्लेस नेबरिंग टू दिस फर्स्ट कॉइल, इसके साथ में एक कॉइल रखा और उसके ये बैटरी कनेक्ट किया, और यहाँ एक टैप की यूज़ किया है। टैप की मतलब जब इसको की को प्रेस करेंगे तो करंट पास होगा, और ऐसे सडनली जब टैप की प्रेस करेंगे तो करंट इसको फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और it will grow, it will take some time, मतलब change in magnetic flux takes place, then this also the magnetic flux link with this coil changes, galvanometer shows the deflection। जब की रिलीज किया करेंगे, निकालेंगे की,
when it is a release the key, the current is a flow in a opposite direction. और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, चेंज होगा, तो अगेन करंट प्रोड्यूस एंड गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन इन ए अपोजिट डायरेक्शन. So these are the three experiments, different मतलब this is coil magnet, coil and this also the coil by varying the current change करें, magnetic field भी चेंज होता है और करंट इंड्यूस होता है. ये 3 एक्सपेरिमेंट है जिससे हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि व्हाट इज द फैराडेज लॉज ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज लिखेंगे. अभी ये समझ गए होंगे तो अच्छी बात है कि तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या करंट इन ए कंडक्टर when change in a magnetic flux is a takes place. जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें जो इंड्यूस करंट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और ये 3 एक्सपेरिमेंट देखें तो अभी इसके 3 एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन लिखेंगे और वो कंक्लूजन इज नोन एज ए फैराडेज लॉज ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इसको मिटा देते हैं. Faraday's laws in electromagnetic induction. Okay. Faraday's laws in electromagnetic induction. The first law is whenever change in magnetic flux takes place in a coil, EMF या current is induced. तैयार हो गया. Whenever there is change in a magnetic flux in a coil, EMF is induced and it will be last as long as change in magnetic flux takes place. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए टेक्स प्लेस. अब इसका मीनिंग समझाता हूँ मैं क्या होता है, किस तरीके से होता है. अभी देखो, वेन एवर देर इज ए चेंज इन ए मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस, ये छोटा सा एक मॉडल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाने के लिए मैंने बनाया था. ये छोटा पीवीसी पाइप है, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर का नंबर ऑफ टर्न्स बनाया है और इसको एक छोटा सा एलईडी लगाया है जो करंट प्रोड्यूस होता है. गैल्वेनोमीटर की जगह ये ग्लो होगा तो हमें पता चलेगा गैल्वेनोमीटर करंट प्रोड्यूस हो गया, नहीं तो हम इसको गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं. और इस पाइप के अंदर एक मैग्नेट रखा है और मैग्नेट को एक एक्सिस बनाया और हम मैग्नेट को रोटेट करेंगे. जैसे मैग्नेट घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा. और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा. क्योंकि ये जो कॉइल है ये कहाँ रखा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर रखा है. ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और घुमाने से, जब इसको रोटेट करते हैं तो ये घुमाने से ये क्या होता है, ये घुमाने से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. मैग्नेटिक फील्ड में ये फ्लक्स चेंज होता है. एज ए रिजल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल. अब यहाँ लॉ की तरफ आ जाओ. वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने जब घुमाऊंगा तब देर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, टेक्स प्लेस ईएमएफ इज इंड्यूस. अगर इसमें तुम देखेंगे ये इंडिकेटर जो है एलईडी, ये घुमाएंगे तो इसको तैयार हो जाएगा. जब घुमाते हैं, ये देखो पहले कैसे घुमाते हैं, ये अंदर इसको घुमा सकते हैं ऐसा, और जैसे घुमा दिए तो ये बल्ब ग्लो हो रहा है, दिखाई दे रहा है. इसमें कोई सेल नहीं है, लेकिन ये जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है. ये छोटा सा एक जनरेटर का एग्जाम्पल है. ये देखो
और इट विल बी लास्ट एज लॉन्ग एज, दूसरा सेंटेंस यूज किया, इट विल लास्ट एज लॉन्ग, कब तक रहेगा? जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता रहेगा। अब मैंने बंद किया तो करंट बंद हो गया, मतलब इट विल लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कब टेक्स प्लेस होगा? जब हम इसको घुमाएंगे, घुमाने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उसका रिजल्ट जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ये बल्ब छोटा सा एलईडी जो है वो ग्लो होके दिखाता है कि एक करंट प्रोड्यूस हो गया। तो दिस नोन एज ए फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो पहले फिर से समझ लो, वेन एवर देर इज ए चेंज इन ए मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस इन ए कॉइल, ये घुमाने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेक्स प्लेस इन ए कॉइल, ईएमएफ इज ए इंड्यूस। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, बल्ब जो ग्लो हो रहा है वो दिखाई देगा, यहाँ एक बल्ब ग्लो हो रहा है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा हूँ, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से यह बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो होता है। मतलब दिस इज इट विल बी लास्ट एज लॉन्ग ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए टेक्स प्लेस। अब सेकंड लॉ देखो, सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ में क्या लिखा है, तो चेंज इन ए मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ equal to rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit. This is the magnitude of induced EMF, कितना मैग्नीट्यूड मतलब कितना के मेरे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux takes place। और द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, EMF के लिए छोटा e यूज करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब d∅dt, d∅dt, दिस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का वैल्यू 1 माइनस d∅dt। तो माइनस का मीनिंग क्या है तो थोड़ा आगे समझाएंगे, लेकिन नहीं रखने से तुम्हें ये लेटर्स गलत यूज लगेगा। तो इट ऑलवेज अपोज द कॉज, इसीलिए इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज द कॉज, लेंस लॉ में समझाएंगे जस्ट नेक्स्ट इसमें। तो रेट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ ए EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF या करंट EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टेक्स प्लेस। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फास्ट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए वेरी फास्ट, द करंट इंड्यूस, अगर स्लोली करेंगे, स्लोली घुमा रहा हो तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इसको वेरी फास्ट घुमाएंगे, स्लोली घुमाने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे इसको ज़्यादा घुमाएंगे तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन। देखो बहुत ज़्यादा फास्ट घुमाएंगे तो करंट इंड्यूस होगा, और स्लो घुमाने से कम करंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स द करंट, और करंट इंड्यूस डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये माइनस साइन मैंने क्यों दिया, इसका मीनिंग समझाता हूँ। दिस नॉन इज ए लेंस लॉ। ये हो गया मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड, इतना मैग्नीट्यूड EMF इंड्यूस हो गया कॉइल के अंदर। और इसका डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, direction of induced EMF identified
are determined by using the Lenz's law. Lenz's law. So Lenz's law is used to determine the direction of the magnetic field produced in the coil. किस डायरेक्शन से करंट प्रोड्यूस होगा? The Lenz's law, it is for the determine the direction of the current. The direction of the current, the when change in magnetic flux is takes place and EMF is induced in the coil, वो coil के अंदर EMF induce होगा. जब ये coil के अंदर EMF induce होगा तो किस डायरेक्शन में करंट रहेगा उसके लिए Lenz's law है. तो it states that the direction of current induced in the coil in such a way that it always opposes the cause producing it. मतलब ये coil के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कर, उसका जो कॉज है उसको हमेशा ये अपोज करता है, उस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है. फिर से सुनो, करंट प्रोड्यूस इन ए कॉइल in such a way that, or direction of the current produced in the coil in such a way that it always opposes the cause producing it. ये प्रोडक्शन के जो कॉज है उसको अपोज करता है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ, एक कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेट को मूवमेंट करने से ये क्या होता है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है. ये करंट क्यों प्रोड्यूस होता है? मैग्नेट का मोशन की वजह से. और मैं कौन सा पोल, एन पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द कॉइल, इसको अपोज करना है, इसको अपोज करना है. अपोज करेगा तो कॉइल क्या करेगा, इसको अपोज करना है एन पोल को, तो यहाँ एन पोल तैयार होगा, तो एन पोल क्या होगा, रिपेल होगा, तो तभी अपोजिशन. मतलब करंट इन द कॉइल प्रोड्यूस इन सच वे दैट दिस एंड प्रोड्यूसेस द एन पोल व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड द कॉइल. जब मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाऊंगा तो ये यहाँ करंट प्रोड्यूस करेगा. कैसा प्रोड्यूस करेगा, तो ये करंट क्या करेगा, मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा. जब अपोज करना है तो यहाँ कौन सा पोल तैयार होना चाहिए, एन पोल. और जब मैग्नेट दूर लेके जाऊंगा, एन पोल दूर जा रहा है, उसको भी अपोज करना है, फिर करंट प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में. यहाँ कौन सा पोल तैयार होना चाहिए, एस पोल, क्योंकि एस पोल और एन पोल क्या होगा, अट्रैक्ट विथ ईच अदर. फिर से सुनो, व्हेन एन पोल इज मूव टुवर्ड द कॉइल, इसको अपोज करना है. कौन अपोज करेगा, तो ये कॉइल में मैग्नेट या करंट प्रोड्यूस होगा, और ये कॉइल में करंट प्रोड्यूस होने से यहाँ एन पोल होने से ये अपोज करेगा, और दूर जाएगा तो एन पोल को ये फिर अपोज करेगा दूर जाने में, यहाँ एस पोल तैयार हो जाएगा. तो बस लेंस लॉ दोबारा समझाऊंगा. अभी आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे. थैंक यू.